बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, लिक्विडिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स रिलेटेड डेट पेइंग एबिलिटी। ठीक है, ये चार्ल्स एच गिब्सन 13 एडिशन का यूनिट नंबर 6 है जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट आर करंट एसेट्स, right? Current assets are those assets which are consumed within a time period of 1 year, not more than 1 year. All assets having a useful life less than a 1 year are categorized in current assets. So, typical example of current assets are cash, receivables, repayments, marketable securities, and inventories. Right? Now move on to the cash. Cash is a that monetary asset which are available or is in our hand, which we can use anytime for payment purpose, for purchasing, for repaying our debt. So cash is unrestricted, available to pay creditors, is reported as current asset. So restrictions are may report as current but disclose restrictions eliminate cash and related current liabilities when measuring short-term debt paying ability. So in simple, cash is what we have in our hand ready to pay without any time lapse or conversion. So cash वो पैसे हैं, वो monetary value है जो कि हमारे hand में available है for paying our debt or for purchasing purpose. So move on to the next one is marketable securities, debt and equity securities. Readily marketable. There are two kind of marketable securities. The first kind is which has a maturity period of less than 1 year, and the other category of marketable securities are having a period of maturity more than 1 year. So only those marketable securities are categorized in a current asset which are having a maturity period of less than 1 year, right? So these marketable securities are recognized at their fair price or value, and these are used as a reclassifying continuing investment as non-current asset. So marketable securities, as I told you, there are two categories. One are classified in a current asset and other category categorized into non-current asset. Right? Now move on to the receivable. Receivable, as the word says, is the payment we have to receive from our debtors uh, for selling our stock or inventory to them so that they have to pay in future period. So claim to future cash inflow arise from the sale to customer like trade account receivable and note receivable. Other current receivable include trade receivable typically collected within a time period of 30 days. This is a general observation that trade receivables are being collected by the company or by the seller within a time period of 30 days. Installment receivable may be carried as a current asset, yet collection may be significantly longer than trade receivable. So there are certain installment receivable which will be received by the corporation or the company or by a seller uh, after a year, or due to installment basis it may extend up to certain years. So usually considered to be the lower quality than trade receivable. So these are the low quality of trade receivable, as trade receivable are received within a time period of normally 30 days, while installment receivable may extend up to certain years. Right? Now customer concentration. uh, if in a larger group of customer there are few people who own a company a larger amount of debt, then this will affect the customer concentration. It will impact the company performance if any large debtor failed to pay payment, right? So it will help to in number of ways. There are two ways
these kind of receivable are being used in analysis of the financial statement, right? First one is number of days sales is receivable. Second is account receivable turnover. These are the two ratios in which we use receivable value to calculate the ratio. Right? Days sales in receivable, the formula is gross receivable divided by net sales divided by 365 days. Right? Sometime in a question, number of days per year are mentioned. If they are not mentioned, by default, you have to use the value of 365 days. Right? Should mirror the company credit terms, and these ratio we calculate reflect the credit terms of a company. Reading reflect end of year status of receivable. Use the natural business year, can understand result. Right? This ratio help to compare the data of the firm and its performance with its previous year data. And sometimes this ratio helps a corporation to compare its performance regarding receivable value with respect to the industry average. Uh, there are two ways due to which the receivable may be overstated and understated. So overstatement की जो वजूहात हैं वो कौन सी हैं? Sales volume expand materially late in the year. Sales volume बहुत ज़्यादा sales हो रही है by the end of the period, not in the start of the period. So this will cause overstatement. Receivable are uncollectible and should be written off. Bad debt हो जाते हैं. You have to you are unable to recover the amount receivable, so you have to write them off. There is a possibility of overstatement. The company seasonally date invoices. On and off company update their record by seasonally recording dates invoices. So sometimes human error is also play part in overstatement. A large portion of receivable are on the installment basis. So sometimes receivable are paid after a year or up to a certain time phase, which is more than 1 year. So there is also a possibility of or cause an overstatement. Then we look into the matter of understatement. Sales volume decreases materially in the year. This goes opposite to the overstatement. Like in the end of the year, sales volume decreases materially, while in the start of the year or in the mid of the year, sales are high. Material amount of sales are on cash basis. Material amount of sale is on cash basis, means most of the sales we conduct in a year are based on cash, not on installment basis or on debt. So these are the two ways of overstatement and understatement. And account receivable turnover. The formula of calculating is net sales divided by average gross receivable. So this is the formula. Determining indicate the liquidity of receivable, and determining average gross receivable end of the year and beginning of the year base point of average mass seasonal fluctuation. So in analysis, internal analysis use monthly or weekly amount, or external analysis use quarterly data. So these receivable turnover ratio in simple words help us to analyze how company is able to receive the payment due from their debtors. So this will help company to analyze their mechanism, and by comparing its ratio with the average industry ratio, or by comparing the ratio with the previous year data. So company may develop such policy to manage its receivable. Now move on to the other, receivable turnover in days. So in order to measure the receivable turnover in days, the formula is average gross receivable divided by net sales divided by 365 days. So if we can say the formula is flipped. So here in account receivable turnover, net sales divided by average gross receivable, and in here it flips. Net sales come to the denominator and average gross receivable move on to the numerator divided by the 365 days. So this ratio will tell the average distribution of receivable in number of days company collect
in a year. Similar to number of days sales in receivable, except every receivable are used to reflect firm credit and collection policy. This ratio will help to determine the credit policy of a firm. It simple word it tell how a company is able to receive its receivable during a year. Inventory. Inventory is also termed as a store. It is categorized into a current asset because these are the inventory which are used or have a useful life of 1 year, not more than 1 year, right? Inventory use held for sale in normal course of business. Inventory has to be held for sale, otherwise this will not be categorized as a inventory. Used in production process, that material is used for the production. Sometimes, and there are three ways of inventory or three kinds of inventory. First one is the raw material, second is work in progress, and the final one is finished good inventory. So there are different trading businesses like wholesale, retail to end customer, single inventory. So these are all sort of people who hold inventory either in the form of raw material, in the form of work in progress, or in the form of finished good. And there are inventory record maintenance. There are two mechanisms: periodic inventory maintenance and continuous record of inventory. So first of all, perpetual continuous record of physical quantities is maintained. Inventory and cost of goods sold updated as sale and purchase take places. Record are verified through physical inventory. In continuous record, whenever our inventory is being purchased or when stock is being purchased, a proper record is being maintained and which is being verified by physically conducting an inspection. So in periodic inventory, periodic physical inventory to determine quantity attached cost to ending inventory based on selected cost flow assumption. So in periodic inventory, the mechanism is different from the perpetual inventory. In periodic inventory mechanism, periodic basis पे आपकी इन्वेंट्री को डिटरमिन किया जाता है. इट लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, परचेजेस कितनी होगी, सेल कितनी होगी. तो बाय डिडक्टिंग द सेल, so you can calculate the closing balance. So then you can check after a periodic time phase, after a month आपके पास इतना ही closing inventory होनी चाहिए. This is the mechanism of how periodic inventory is being determined. Inventory cost कौन सी होंगी? Tracking of specific cost normally in practical large and expensive items होते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ होगी आपकी इन्वेंट्री, उसमें आपकी होगी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग होगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, कॉस्ट ऑफ अगर कोई टैक्सेस उस पर पे किया हुआ है वो होगी, अगर आपको उस पर डिस्काउंट मिला हुआ है तो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. अब इन्वेंट्री को डिफरेंट वेज हैं जिस पे आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज आईफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इट मीन्स कि जो इन्वेंट्री आपने पहले बाय की थी उसको आप पहले सेल करेंगे एट दैट रेट जो कि आपका प्रीवियसली रेट था. इसी तरह एक जो आपकी लाइफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एंड में इन्वेंट्री आपने परचेज किया उसको आप पहले सेल करेंगे, ठीक है. इसी तरह एवरेज है, एवरेज में ये होता है कि फर्स्ट बाय हो या लास्ट बाय हो उन सबको कंबाइन कर एवरेज ली जाएगी. उस एवरेज रेट जो रेट निकलेगा उसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री को सेल आउट किया जाएगा. अब ये जो हमने लाइफो फाइफो देखा, इसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है. कैश फ्लो जो है इज हायर व्हेन लाइफो इज यूज्ड फॉर टैक्स रिपोर्टिंग, ठीक है. कैश फ्लो आपका हाई आएगा लाइफो अगर मैकेनिज्म आप यूज करेंगे टैक्स रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है. लाइफो प्रॉफिट जनरली लो देन फाइफो प्रॉफिट. जो लाइफो है उसके अंदर क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम आएगा फाइफो की निस्बत. सो फर्म यूज दिस टेक्निक्स टू change the portion of tax they have to pay. So अगर वो टैक्स को कम करना चाहते हैं तो इनमें से दे क्या करेंगे, वो लाइफो को यूज करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो उस पर टैक्स भी कम पे करेंगे, ठीक है. लाइफो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है. लाइफो रिजर्व measure the spread between LIFO and FIFO inventory value, disclose the approximate FIFO inventory value. FIFO inventory closer to replacement value of the asset. FIFO में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो एक तरह की रिप्लेसमेंट वैल्यू के ऊपर आपका वर्क कर रहा होता है. इनिशियली आपका जो है लाइफो ज़्यादा यूज होता था,
लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड amendment, LIFO system जो है वो it is not preferred to be used. So normally the FIFO method is being preferred, or the average method. These are the methods which are normally being used by the corporation or manufacturers. ठीक है. Inventory लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट. तो हमेशा इन्वेंट्री एक ही वैल्यू पे रिकग्नाइज नहीं होती है. आपने 100 रुपीज की चीज परचेज की, आफ्टर अ मंथ मार्केट वैल्यू के डिक्लाइन होकर 90 पे आ गई, तो यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री टू 90, विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू. सो दिस इज आल्सो टर्म्ड एज अ रिटर्न डाउन वैल्यू, तो डिडक्टेड वैल्यू. तो यू हैव टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इन्वेंट्री 100 की ली और उसकी परचेज आपकी 100 है, और उसकी आफ्टर मंथ प्राइस इंक्रीज हो गई है या वैल्यू इंक्रीज हो गया टू 110, इवन देन यू हैव टू डू द अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इन्वेंट्री को एट द मार्केट पर रिकग्नाइज करना पड़ेगा. ठीक है. लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री जो है वो ये टर्म या इन्वेंट्री हमारी कौन कौन सी रेशियोज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी. नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, राइट, कि पूरे साल के अंदर हमारी सेल ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो रही है पर डे के लिहाज से हमारे आ जाएगा कि पर डे हमारी इन्वेंट्री कितनी सेल हो रही है. देन इन्वेंट्री यूज होगी इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स पर ईयर, कि टर्नओवर एक ऑपरेटिंग सर्कल होता है इन्वेंट्री का, एक साल में वो कितनी बार हमारी इन्वेंट्री का सर्कल रन हुआ है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम पर ईयर हमें ये हेल्प आउट करेगा फाइंड आउट करने में. फिर इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब फार्मूला देखते हैं. डे सेल्स इन इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है, आपने एंडिंग इन्वेंट्री को डिवाइड कर देना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड सोल्ड बीइंग डिवाइडेड बाय 365 डेज ऑफ अ ईयर. ठीक है. बट ये जो रेशो हम कैलकुलेट करें, इससे हमें कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट होंगी, ये हमें कैसे हेल्प आउट करेगा. इट इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू सेल ऑल इन्वेंट्री ऑन हैंड. सही. फॉर एग्जांपल आई होल्ड 100 इन्वेंट्री, और मेरे पास जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 10. ठीक है. मैंने ये रेशो कैलकुलेट की, मेरे पास आ गई रेशो 10. इट मीन कि मेरे पास पर डे मेरे 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास 100 इन्वेंट्री है, तो आई विल नीड 10 डेज टू सेल माई 100 इन्वेंट्री. सो user natural business year understand number of days sales in inventory overstated quality liquidity of inventory. ठीक है. इसका जो ये इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर. इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रीम हाई एंड लो लैंड पे एंड पे की क्या वो इम्प्लीकेशन है. ठीक है. हाई एंड पे देखें एक्सेसिव इन्वेंट्री फॉर सेल एक्टिविटी, कि जितनी ज़्यादा सेल एक्टिविटी होगी आपका हाई एंड होगा, आपकी उतनी ज़्यादा आपकी ये रेशो बढ़ती जाएगी. लो एंड पे ये है कि ये ऑब्वियस बात उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं तो. ठीक हो गया. इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. राइट. एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन में आपके पास 2 ईयर डाटा होगा. फॉर एग्जांपल 2010 एंड 2011 का डाटा है. यू हैव टू ऐड दीस टू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2010-11 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी. अब इस रेशो को कैलकुलेट करने से हमारे पास कौन सी चीजें हमें मालूम होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री, कि हमारी इन्वेंट्री कितनी लिक्विड है, कितनी ज़्यादा लिक्विड है. जितनी ज़्यादा ये वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. अच्छा. डिटर्मिंग एवरेज इन्वेंट्री क्या है, एंड ऑफ ईयर एंड बिगनिंग ऑफ ईयर की वैल्यू लेके उसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फ्लक्चुएशन जो है वो एवरेज वैल्यू निकल आएगी. ठीक हो गया. तो ये है. देन हमारे पास क्या है, अब कंपैरिजन इशू कौन कौन से आएंगे. ठीक है. जब हम इसको कंपेयर करेंगे, अब यूज कॉशन व्हेन कंपेयरिंग अ मिक्स ऑफ नेचुरल एंड कैलेंडर ईयर कंपनीज. अब अगर आप दो कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने जो चीज़ को माइंड में रखना वो ये है कि कोई कंपनी नेचुरल ईयर को यूज कर रही है, कोई इसी का अपना कोई फिजिकल ईयर चल रहा है. अगर दोनों के ईयर मैच नहीं कर रहे, तो आपका कंपैरिजन गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का ईयर है जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 30 दिसंबर से. ठीक है. और एक दूसरी कंपनी जिसने अपने ईयर को फ्लिप किया, उसका 12 मंथ की बजाय 10 मंथ का ईयर है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 मार्च से अपना स्टार्ट किया और 31 दिसंबर तक. तो अगर आप इन दो कॉर्पोरेशन के डाटा को लेके कंपेयर करेंगे, तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर 12 मंथ का पीरियड है और इसके अंदर आपका 10 मंथ का पीरियड है. तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट यूजिंग द
पीरियड ऑफ एनालिसिस कि कौन सी कंपनी के कौन से डाटा के साथ आपने उसको एनालाइज करना है, ठीक है। फिर है जी इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। डेज में कैसे होगा, एवरेज इन्वेंट्री है उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ और डिवाइड करेंगे 365 डेज के साथ, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इन्वेंट्री टर्नओवर पर ईयर निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपने इन्वेंट्री टर्नओवर पर ईयर क्या किया, यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूले के थ्रू। इसका जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपने 365 को डिवाइड कर देना है इस आंसर के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर पर ईयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब है जी एसिड, करंट एसिड ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल होता है इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, जो कि पीछे मैं आपको रेशो बता चुका हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों के आंसर जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इस यूनिट के अंदर बेसिक चीज जो आपने मेमोराइज करनी है, दैट आर द फार्मूलाज एंड द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर आपको मालूम हो गया कि हमने डे सेल इन्वेंट्री कैसे निकालनी है, या एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है, या रिसीवेबल इन डेज या इन ईयर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको फार्मूले से वो निकला है। देन द अदर बेसिक थिंग यू नीड टू नो आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रेशियोज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्री पेमेंट पे। प्री पेमेंट आर द वो पेमेंट है जो कि आपने इन एडवांस पे कर दी होती है, बट जेट यू हैव टू यूटिलाइज दो पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मोबाइल में अपना लोड या बैलेंस लोड करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 500,000 का आपने लोड करवाया, तो ये आपकी प्री पेमेंट है इन अ वे, बिकॉज आपने पेमेंट तो कर दी, बट यू जेट हैव टू यूटिलाइज द बेनिफिट आउट ऑफ दिस पेमेंट, so these are the प्री पेमेंट, ठीक हो गया। देन अदर करंट एसेट में आपके जो है अगर प्रॉपर्टी हेड फॉर सेल है, ऑब्वियसली इफ अ प्रॉपर्टी हेड फॉर सेल, तो क्या होगा, इट इज बीन सोल्ड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं will be realized in cash or conserve the use of cash within the operating cycle of business of 1 year whichever is longer, ठीक है। तो वो हमारा करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें अगर कि हमारी एडवांस डिपॉजिट्स हैं तो वो भी हमारे क्या होंगे, करंट एसेट के अंदर कैटेगराइज हो जाएंगे। अब आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशन व्हिच वी हैव टू पे विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। अगर आपका 1 ईयर से ज्यादा पीरियड हो जाएगा तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी, या इन अदर वर्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्लिगेशन हुज लिक्विडिटी रिस्पांसिबली एक्सपेक्टेड to require the use of existing resource properly classifiable as current asset or the creation of other current liabilities, ठीक है। ये चीजें आ गई। वैल्यूएशन में क्या है, कैरिड एट फेस वैल्यू, जस्ट लाइक करंट एसेट इन्वेंट्री, आपने क्या करना है, आपने करंट लाइबिलिटीज को भी क्या करना है, एक फेस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, राइट। कैपिटल आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये आपके इज इक्वल हो जाएंगे किसके, वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट, राइट। ये हो गया। और फिर हम देखते हैं जी करंट रेशो को, ठीक है। करंट रेशो के अंदर हम क्या करें, करंट एसेट को डिवाइड करें करंट लाइबिलिटीज के साथ, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को करंट रेशो के साथ आपने इंटरमिक्स नहीं करना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपने जो वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है उसमें आपने करना है करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर आपने करंट लाइबिलिटीज वो सॉरी करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, करंट एसेट को डिवाइड करना है किससे, करंट लाइबिलिटीज के साथ, ठीक है। करंट रेशियो हमें क्या बताती है, ये अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ इन डिटेल। एसेट रेशियो को हम देखते हैं, इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपके करंट एसेट है उसमें से आपने इन्वेंट्री को लेस कर देना, चाहे वो इन्वेंट्री है चाहे वो स्टॉक है, उसको आपने करंट एसेट से लेस करेंगे, वट एवर जो आंसर कम जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना किससे, करंट लाइबिलिटी से, तो आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आपकी एसेट रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप एक काम करें,
कैश इक्विवेलेंट ले लें, कैश ले लें, बैंक बैंक की वैल्यू ले लें, बैंक अकाउंट ले लें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले लें, नेट रिसीवेबल ले लें, डेटर्स ले लें और उनको ऐड कर लें और उसको डिवाइड कर दें किससे, करंट लाइबिलिटी से। तो भी आपकी कौन सी वैल्यू, करंट आपकी क्विक रेशो निकल आएगी। अब देखें ये करंट रेशो है क्या, इट डिटरमिन शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ अ फर्म कि विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 year either a company is able to pay their debt or not, right? Focuses on the relationship between the current asset and current liabilities। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के दरमियान जो है रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है रेशियो के थ्रू, जो कि कंपनी के लिए बड़ा फायदा मंद होता है, especially for the management। your management has to make decision to timely make the payment of short term debt। so traditionally बैंक में जो है 2 है कि अगर आपकी रेशो 2 है तो इट इज ideal, but it depends on the industry, it varies from industry to industry। somewhere there are certain firms where 1.5% or 1.3% is current ratio is ideal or favorable। in this incorporation they think keeping more cash in hand make determining the lackness of managerial performance because you are unable to effectively utilize cash। ठीक है, आप एक्सेसिव कैश को हैंड में लेके बैठे हुए तो यू आर अनएबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली, जिसकी वजह से आपको रिटर्न नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये आपको होगी करंट रेशो। देन आता है एसेट रेशो, मुझे द इमीडिएट लिक्विडिटी ऑफ द कैश, ये ज़्यादा क्विक कैश हो जाए क्योंकि इसमें से हमने इन्वेंट्री को रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैव टू मेक पेमेंट, तो कंपनी को इन्वेंट्री सेल करने में और उससे कैश आने में टाइम लगेगा और कंपनी ने पेमेंट करनी है। दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज लिटिल बिट क्विकर देन द क्विक करंट रेशियो, राइट। तो इसमें आपने क्या करना है, इट रिलेट मोस्ट लिक्विड एसेट टू करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जो आपके मोस्ट लिक्विड हैं जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, आपके रिसीवेबल हो गए, ये आपके मोस्ट लिक्विड होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द इन्वेंट्री। तो इसमें ट्रेडिशनल बेंचमार्क जो समझा जाता है कि आइडियल है वो क्या है, 1, कि अगर आपकी क्विक रेशो आ रही है 1 तो इट इज मोर आइडियल और फेवरेबल। देन आ जाती है आपकी कैश रेशो। कैश रेशो से नाम से पता चलता है कैश, कैश इन हैंड और कैश रेडीली कन्वर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोई प्राइस बॉन्ड है, कंपनी के पास फौरी तौर पे बैंक में दे के उसकी पेमेंट आ सकती है, रेडीली चेंजेबल है। कैश आपके पास है, बैंक बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, दीज आर ऑल कैश। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने आपकी इन्वेंट्री को भी निकाल दिया, आपने रिसीवेबल्स को भी निकाल दिया, सिर्फ जो मोस्ट लिक्विड कैश था वो आपने ले लिया, कैश और कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और इसको हमने डिवाइड किया किससे, करंट लायबिलिटी से। तो आपके पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, unrealistic for the firm to have sufficient cash and security to cover all its current liability। ये जो है करंट रेशो ये हमेशा बिलो 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 अबव वैल्यू नहीं आती बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी इज नॉट होल्डिंग दैट मच कैश इन देयर हैंड, सो हमेशा इसकी वैल्यू बिलो 1 होगी। सेल टू वर्किंग कैपिटल, फार्मूला कैसे है, फार्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो मेजर द टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल पर ईयर। वर्किंग कैपिटल आपका जो पर ईयर में यूटिलाइजेशन है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगा। इस रेशियो को हम कंपेयर करेंगे किस लिए, आपका हिस्टोरिकल डाटा जो आपका प्रीवियस ईयर का जो कंपनी की डाटा उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के जो आपकी एवरेज है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपका जो कंपेटिटर है उसके जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस रेशो के थ्रू, और जज कर सकते हैं कि आया कि आपकी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही। सो ये हमारा जो यूनिट था ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूनिट हमारा था कौन सा, लिक्विडिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट एंड रिलेटेड डेट पेइंग एबिलिटी। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी रेशोज को देखा, उनको एनालाइज किया, उसको देखा कि कौन सी रेशो हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में, और किस रेशो की वैल्यूज को हमने कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन केस यू हैव अ क्वेश्चन और अ क्यूरी, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है कोई पूछ सकते हैं आप, तो आई होप कि मैं आपको
इफेक्टिवली लेक्चर में समझा पाया हूँ और आपको समझ आ गई होगी। सो इन कमिंग वीडियोस मैं आपको पहले से उसकी अपडेट दे दूँ। मैं इंशाल्लाह ये जितनी भी हमने रेशोज को यहाँ पे गो थ्रू किया है, मैं हर रेशो को इंडिविजुअली एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो रेशो है इसको इन अ क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इन अ कमिंग वीडियो स्टे इन टच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंशाल्लाह मैं जो है अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसके अंदर ये तमाम रेशो हम बंदा बंद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।